Welcome dear students, hope you are fine. So in your as you know today I'm going to discuss with you about the one more topic that is the trade or commerce भी हम कह सकते हैं. So as you know in earlier I discussed with you that is the communication. So communication is one of the important means in our country that the means of communication are one of the, so these are the these means are used to share the information. So these are very plays a very important role in the country to know about the various things, political situation of country, national international awareness. So these are the advantages of communication. We came to aware because of this through communication process. Now this नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द ट्रेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द ट्रेड. ट्रेड किसको बोलते हैं हम, और कॉमर्स किसको बोला जाता है, ट्रेड कॉमर्स. सो द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग द पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज इज रेफर टू एज द ट्रेड. सो बेटा जो हम एक्सचेंज कर रहे हैं, हम गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, वेदर द गुड्स आर फ्रॉम एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, वेदर दे आर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड एनी अदर फॉरेस्ट या मैरीन बेस्ड गुड्स या एनी अदर थिंग्स. सो दैट गुड्स आर this exchanged between the countries or between the states and this between the towns and one region to other geographical region. So जब हम इन गुड्स को यहाँ से बेचेंगे और वहाँ से कोई दूसरे गुड हम गुड्स को वहाँ पे वापस लाएंगे, यहाँ से कोई एग्रीकल्चरल मटेरियल को हम दूसरी कंट्री में लेंगे और वहाँ से हम बदले में कोई मैन्युफैक्चर गुड्स या किसी दिस अदर थिंग्स या फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स या अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स या दिस माइनिंग प्रोडक्ट्स को वापस लाएंगे. तो आप देखो दिस इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज द ट्रेड. दिस प्रोसेस इज नोन एज द ट्रेड. अब आप देखो एक्सचेंज ऑफ गुड्स only not occurs between the countries, so it also occurs at the local level between the one village to another village, the exchange of goods, and between these cities, one city to another city, between the states, one city to another city. So that is the national trade and the international trade. So अगर आपका exchange of goods होगा between the two nations, that is known referred to as the international trade. And other if the thing this exchange of goods is between this at the national level, from one city to another city, from one city to another city, or we can say from one geographical region of country to the other geographical region, or we can say from one town to another town. So this exchange of goods between the town, cities and these villages etc, that is known as this local trade, or we can say this national trade also. So first of all you should be aware about this. So जो हम exchange of goods कर रहे हैं, that is known as the trade. So between the countries हो रहा. In another words, हम दूसरे words में भी ये भी कह सकते हैं बेटा, the buying and selling of goods among the people. जो लोगों के बीच में आप देखो बाइंग एंड सेलिंग का काम हो रहा है, कुछ लोग सेलिंग कर रहे हैं, कुछ लोग बाइंग कर रहे हैं, एंड दिस प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इज नोन एज ट्रेड. सो इसी से ट्रेड पैदा होता है. हम कोई गुड्स को बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो दैट इज आल्सो नोन एज द ट्रेड. दिस द मार्केट इज ए प्लेस वेयर सच एज एक्सचेंज टेक प्लेस. सो ये किस जगह पे प्लेस होता है, कहाँ पे होता है? सो जनरली जिस जगह पे ये टेक प्लेस होगा बाइंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ दिस गुड्स, दैट इज नोन एज द मार्केट. सो मार्केट इज द प्लेस वेयर दिस buying and exchanges of takes place, buying where the trade occurs, trade and commerce occurs. So this that is known as the market. Trade between the two countries is called as international trade. So if our buying and exchanging of goods occurs carried out among the two nations, so that is known as the international trade. So point to remember here, if the exchange of goods between the two nations take place, carried out between the two nations, so यहाँ से हम देखो फॉर एग्जांपल यूएसए के लिए कुछ कमोडिटीज को हम यहाँ पे दिस एक्सपोर्ट करेंगे और वहां से हम कुछ कमोडिटीज को जिनकी यहाँ पे जनरली आप देखो नॉन अवेलेबिलिटी है या प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, वो गुड्स हमें वो वहां से बदले में देंगे. सिमिलरली फ्रॉम जापान, फ्रॉम चाइना, फ्रॉम पाकिस्तान एंड एनी अदर थिंग्स हम यहाँ से एक्सचेंज एंड दिस गुड्स कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज द इंटरनेशनल ट्रेड. सो बिटवीन द कंट्रीज कैरिड आउट, दैट इज नोन एज द इंटरनेशनल ट्रेड. व्हाट इज द ट्रेड? सो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बिटवीन द people among the people, or the exchange of goods among the people, states and countries. जो लोगों के बीच में आप देखो exchange of goods होता है, that is trade. So
trade between the exchange, when the exchange is carried between the nations, so that is known as the international trade. And the place where this exchange takes place, that is known as the market. So market is a place where this exchange of goods among the people takes place. So it may take place through sea, air, and the land route. So this international trade may be through the sea, that is we can use the domain of water, that is हम sea और ocean transport का इस्तेमाल कर रहे हैं, exchange of goods through these oceans and sea routes के जरिए हम between the countries कर रहे हैं. So or we can say by the air तो route से भी हम exchange कर रहे हैं, और land route से जिन nation के साथ में connectivity, land connectivity होगी, so we can take place this carried out this exchange of goods through this land route, that is known as the this international trade, and carried out through the air and land and the water routes. While the local trade take place in cities, towns, and villages. So you know that is the local trade simply which is within the nation, जो nation के between the states, towns, या between the village to villages or towns to villages जो होता है rural to urban और within the nation, that is known as the local trade. This while local trade takes place in the cities, towns and villages, state level trade is carried out between the two or more cities. Now इसमें भी हम देखेंगे जो this exchange of goods between the one city to one city to another state होगा, that is known as the state level trade. और जो आप देखो exchange of goods, the exchange of goods takes place between the towns to villages and village to village and cities to another city, that is known as the local trade. आप देखो एक city से दूसरे सिटी से, मैं आपको एग्जांपल आप देखो, फॉर एग्जांपल एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन अनंतनाग श्रीनगर, बिटवीन अनंतनाग कुलगाम, दैट इज नोन एज द लोकल ट्रेड. इट इज द विदिन द स्टेट, बिटवीन द टाउन्स ऑफ द स्टेट, बिटवीन द टाउन्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी, और बिटवीन द विलेजेस ऑफ दिस यूनियन टेरिटरी, और वी कैन से बिटवीन द इंपॉर्टेंट टाउन सिटीज एंड बिटवीन द रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑफ यूनियन टेरिटरी J&K. सो दैट इज नोन एज द लोकल ट्रेड. जो हम लोकली आप देखो विद इन द स्टेट करेंगे, विद स्टेट के अंदर या यूनियन टेरिटरी अंदर जो इंपॉर्टेंट सिटीज है, इंपॉर्टेंट विलेजेस है, टाउन्स है, तो या रूरल अर्बन एरियाज के बीच में जो टेक प्लेस होता है, दैट इज नोन एज द लोकल ट्रेड. एंड when this exchange of takes place between the one city to another state, that is for example Punjab, J&K, Union Territory, Punjab, Haryana, and Delhi, or we can say Gujarat, etc. So this is the exchange of goods takes place between this, that is known as state level trade, and this local trade, and this international trade. So this state level trade is generally takes place through this land route. Generally हम land route और railway route दोनों का, land route का हम railway या road का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ज्यादा आप देखो ये throughout the air वाटर नहीं होगा, तो कभी किसी जगह पे आप देखो वाटर से भी हो रहा है, लेकिन मोस्टली ये थ्रू दिस लैंड रूट से हो रहा है. एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ ए कंट्री इज एन इंडेक्स टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. तो अब देखो एडवांसमेंट, जितनी हम एडवांसमेंट करते हैं, जितनी हम कोशिश कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, जितना ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड होगा, और वी कैन से मोर द एडवांसमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ ए कंट्री इज एन इंडेक्स टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. तो ज्यादा से ज्यादा आप देखो कंट्री में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी, हमारी कंट्री इकोनॉमिकली प्रॉस्पर होगी, इकोनॉमिकली गुड होगी, इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ होगी. सो when any nation makes the approach towards the international trade, so advancement in the international trade of any country, so you know that is the more and buying and takes place, more profit gains the country, and so the country got the economic strength, got the economic prosperity. So it is the common sense. आप देखो जो पर्सन ज्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स करेगा, बाइंग एंड सेलिंग, तो उसको दिस प्रॉफिट ज्यादा होगा, और वो इकोनॉमिकली स्टेबल होगा, स्ट्रेंथ उसको होगी, या इकोनॉमिकली प्रॉस्पर, यानी उसको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम नहीं होगी. सो सेम इज द केस विद द कंट्री. सो अगर कंट्री अपना दिस एक्सटेंड करेगी, फ्लोरिश करेगी इंटरनेशनल ट्रेड, ज्यादा से ज्यादा नेशंस के साथ आप देखो अपना इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ाएगी, बाइंग एंड सेलिंग ज्यादा करेगी, तो आप देखो बाइंग एंड सेलिंग से आप देखो हमारी यहाँ पे ज्यादा आप देखो अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट होते हैं, और उसके अलावा ट्रेड एंड कॉमर्स के अपॉर्चुनिटीज बन जाते हैं, या बाकी अदर आप देखो लेबर या ट्रांसपोर्ट या बाकी अदर चीजों की आप देखो और हमारी कंट्री को इससे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होती है. तो लोगों को आप देखो इकोनॉमी हालत, यानी पैसे, मनी, यानी मॉनिटरी
इकोनॉमी मीन्स मॉनिटरी, यानी आप देखो हमारी मॉनिटरी स्ट्रेंथ, हमारी मॉनिटरी इंक्रीज हो रही है ट्रेड से। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि अगर कंट्री ज्यादा एडवांसमेंट करेगी, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगी अपने ट्रेड को, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने के लिए, तो द कंट्री गॉट द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। और अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड में आप देखो दिस लैग करेंगे, अगर हम देखेंगे कि इस इंटरनेशनल ट्रेड को हम ज्यादा एडवांस नहीं करेंगे, सो आप देखो कंट्री में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ज्यादा नहीं होगी, बाइंग एंड सेलिंग कम होगी, अपॉर्चुनिटीज आप देखो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लेबर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ट्रांसपोर्ट जनरेशन, बाइंग एंड सेलिंग एंड दिस अदर थिंग्स आप देखो, जिसकी वजह से आप देखो मॉनेटरी स्ट्रेंथ हमारी कंट्री को ज्यादा होती है। तो ये ओनली बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड एंड सो पर्टिकुलरली आप देखो इंटरनेशनल ट्रेड से हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कंट्री को ज्यादा होगी। तो पॉइंट आपको याद यहाँ पे रखना कि अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ा देंगे, हमारी कंट्री में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, हमारी कंट्री इकोनॉमिक स्ट्रेंथ डेवलप होगी, हमारी कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप होगी। सो इफ वी लैक if we this in the international trade, so our country this economic prosperity we will lose, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आप देखो वो लूज हो सकती है। इट इज देयरफॉर कंसिडर है इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ ए कंट्री। जो आप देखो इंटरनेशनल ट्रेड होता है बेटा, सो इट इज सेड टू बी दैट इज इट इज द इकोनॉमिक बैरोमीटर। बैरोमीटर सिंपली है इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर, यानी बैरोमीटर दैट इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो आप देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम देखते हैं कि जो हम मेजर करते हैं एट द डिफरेंट हाइट्स पे, तो पर्टिकुलरली नियर द सरफेस एंड एट द डिफरेंट हाइट्स, सो दैट इज नोन एज द बैरोमीटर ऑफ ए कंट्री। सो यही आप देखो इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है ये हमारी कंट्री का आप देखो इकोनॉमिक बैरोमीटर को बढ़ा देता है। इकोनॉमिक बैरोमीटर यानी जो हमारी मॉनिटरी वैल्यू है, जो हमारी इनकम है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो इससे ज्यादा होती है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इकोनॉमिक बैरोमीटर। ये हमारी आप देखो इकोनॉमी को बढ़ा देता है। यहाँ पे इकोनॉमिक बैरोमीटर का आप देखो दैट मीन्स इट इंक्रीजेस द इकोनॉमी, इट इंक्रीजेस द मॉनिटरी वैल्यू टू द कंट्री, इट इंक्रीजेस द दिस strength of economic of our country but by the international trade। so जितना international trade होगा, जितना commerce होगा, buying and selling between the nations, so it can this help us to bring the prosperity in our country to this employment this generation, it increases the employment generation opportunities, employment opportunities, and also it increases the we can say that is economic strength of our country, economic prosperity of our country. It removes the hungerness and starvation of our country, it removes the unemployment from our country. So this international trade brings the prosperity. This international trade is one of the important this for the economic strength of country or as we see that is by the economy। अगर हमें इकोनॉमी की बात करेंगे तो इंटरनेशनल ट्रेड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी and economic strength of country। So now question, why this trade, local as well as the international or state level trade take places carried out? ये ट्रेड क्यों हम कर रहे हैं, क्या इसकी जरूरत की है, जरूरत क्यों पड़ गई, क्यों, कौन सी चीजें जो हमें फिर वो कर रहे हैं कि हम मजबूर होते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज को करने के लिए, या आप देखो स्टेट लेवल करने के लिए हमें क्यों मजबूरी होती है। तो बेटा क्वेश्चन ये है कि why we have this need of the trade, why we felt the need of the trade। so the answer इस question का ये भी है कि as the resources are spaced bound, you know the resources are distributed unequally over this world, over this land, some or we can say that is the resource are unequal distribution, unevenly distribution। आपको पता है कि जो भी resources आप देखो जो हमारे इस मदर अर्थ पे है, तो ये आप देखो unequally distributed है, nature has not distributed it them equally। आप देखो ये resources equally distributed नहीं है but unequally distributed है। there are some regions which are rich in some resources, few resources, and lack of other resources, and while the some regions have their rich in that resources which earlier the region was lack of that resources, and this other resources are very in the abundance। for example, if we take the example of Indian, you know this physiographic this northern part of physiographic region, that is the Himalayan mountains, are rich in forest products, are rich in this glacier and the rivers। आप देखो rivers resources है, hydroelectricity potential है, water availability ज्यादा
ज़्यादा है, फॉरेस्ट्स है, एनिमल लाइफ है, वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा है। वाइल एज द साउदर्न रीजन यानी डेक्कन प्लेटो और वी कैन से साउदर्न प्लेटो इज रिच इन द मिनरल वेल्थ। सो आप देखो साउदर्न इंडिया को आप देखो मिनरल वेल्थ ज़्यादा है कि, जबकि आप देखो इसकी कमी, इसकी लैक हमें नॉर्दर्न इंडिया पर्टिकुलर आप देखो वो हिमालयन माउंटेन्स में हमें मतलब ये रिसोर्सेज बहुत कम मिलते हैं, मिनरल्स बहुत कम मिल रहे हैं। लेकिन वहां पे आप देखो साउदर्न इंडिया में आप देखो उतनी आप देखो प्लांट डाइवर्सिटी ज्यादा नहीं है, वाइल्ड लाइफ उतनी ज्यादा नहीं है, एंड वी कैन से दैट इज ग्लेशियर्स वहां पे नहीं है, परनियल रिवर्स वहां पे नहीं है। सो ये चीजें आप देखो स्पेस बाउंड है। स्पेस बाउंड मीन्स वेरी टू रीजन, यानी एक रीजन में आपको बहुत ऐसे रिसोर्सेज मिलेंगे, बहुत एबेंडेंस में मिलेंगे, लेकिन वो रिसोर्सेज आपको दूसरी जियोग्राफिकल रीजन में ना मिलेंगे, क्योंकि वहां पे आप देखो इन्वायरमेंट और क्लाइमेट या बाकी फिजियोग्राफी की प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से वहां पे दूसरे रिसोर्सेज मिलेंगे। सिमिलरली जिस रीजन में इन रिसोर्सेज की कमी होगी, जैसे आप देखो ग्लेशियर्स वगैरह की, आप देखो साउदर्न में आप देखो, नॉर्दर्न में एबेंडेंस है नॉर्दर्न इंडिया में और साउदर्न में ये बहुत ही कम है, लेकिन साउदर्न में आपको मिनरल्स मिलेंगे, नॉर्दर्न में आपको ये बहुत ही कम मिलते हैं। तो जिस नेचर ने इनको आप देखो स्पेस बाउंड है। स्पेस बाउंड मीन्स जो ये रीजन टू रीजन, स्पेस मीन्स हियर पे रीजन टू रीजन जो है वो स्पेस बाउंड है, रीजन टू रीजन वेरी होते हैं, रिसोर्सेज आप देखो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। और दूसरी बात अगर हम करेंगे इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में आप देखो दिस एबंडेंट एलुवियल सॉइल है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ज्यादा होती है, जबकि आप देखो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में उतनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ज्यादा नहीं होती है। तो उस रीजन में आप देखो कुछ अदर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज है, यहाँ पे आप देखो एग्रीकल्चर रिसोर्सेज है। तो रीजन टू रीजन ये रिसोर्स वेरी होते हैं। सो दिस इज द रीजन दैट वी फेल्ट द नीड ऑफ द ट्रेड, यानी इसकी वजह से आप देखो इन रिसोर्सेज को जो एक रीजन में आप देखो ज्यादा एबेंडेंस में पाए जाते हैं, दूसरे रीजन में उनकी कमी होती है, तो हम उन एबेंडेंट रिसोर्सेज का, हम उन सरप्लस रिसोर्सेज को दूसरे रीजन में आपको उनको दिस ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो और वहां से आप देखो उस रीजन में आप देखो बदले में वो दिस कमोडिटीज, वो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे हैं इस रीजन की तरफ जिनकी यहाँ पे कमी है। तो आप देखो बिटवीन दिस वन रीजन टू अनदर रीजन दैट इज द दिस buying and selling takes place, that is the this carrying of agricultural or other this mining products takes place, यानी जो ये बाइंग एंड सेलिंग आप देखो बिटवीन द वन रीजन टू अनदर रीजन टेक प्लेस होती है। तो वहां के लोग उनको जो कमी पड़ती है तो वो उन रिसोर्सेज को दूसरे रीजन से मंगवाते हैं, लैंड रूट और वी कैन सी रूट और एनी अदर रूट। सो दैट इज द नोन एज द ट्रेड। और वहां से आप देखो उन सरप्लस रिसोर्सेज को दूसरे रीजन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं जो वहां पे एबेंडेंस में पाए जाते हैं। सो इसकी वजह से आप देखो ये ट्रेड यानी वजूद में आता है। तो यही आपको यहाँ पे याद रखना है कि ट्रेड क्यों आता है, ट्रेड हम क्यों करते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। बिकॉज द रिसोर्सेज आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, these resources vary over the space, these resources are space bound, so there are the some region which have this abundance of some resources and lack of other resources, and another some geographical region which have abundance of other resources and lack of some. So these abundance resources are supplied to this lack of regions where the shortage of these resources felt, and the abundance from that resources are felt to this other the shortage areas. So this process by this process, by this unequal distribution of minerals and other these resources are this we can say that is the gives the opportunities of trade. तो इनकी वजह से आप देखो हमें opportunities of trade हो गई। So as you see here, as the resources are space bound, as the resources are space bound, no country can survive without the international trade. So आप देखो कंट्री की बात भी हम करेंगे, कुछ रीजन आप देखो बहुत ही ज्यादा मालामाल होती है कुछ रिसोर्सेज में, लेकिन उनमें कुछ रिसोर्सेज बहुत ही कम पाए जाते हैं। तो वो अपने वो उन एबंडेंट रिसोर्स को दूसरी कंट्री में भेज रहे, बदले में वो रिसोर्सेज वहां से आप देखो वो कंट्री उनको सप्लाई कर रही है। तो आप देखो जैसे हम बात करेंगे दिस कुछ यानी वेस्ट एशियन कंट्रीज की बात करेंगे, यूएई वगैरह, तो उनमें आप देखो बहुत सारे ऑयल रिसोर्सेज है, वहां से आप देखो हम ऑयल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं टू द इंडिया। आप देखो इंडिया में आप देखो उतना ऑयल एक्सट्रैक्ट नहीं है, उतना ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री ये नहीं है। सो हम यानी पे हम देखेंगे जो कुछ कंट्रीज है वेस्टर्न साइड से है, इराक या यूएई वगैरह, आप देखो वहां से हम ऑयल को दिस
इंपोर्ट कर रहे हैं वहां से हम ऑयल, क्योंकि हमारी कंट्री में आप देखो इस रिसोर्स की कमी है, क्योंकि नेचर हैज दिस डिस्ट्रीब्यूटेड दिस रिसोर्सेज आने को लिए। और यहाँ से आप देखो हम कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, कुछ दिस माइनिंग प्रोडक्ट्स या फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आर वी कैन सी दैट इज द केमिकल्स वगैरह, वो हम उनको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो आप देखो वो हमें वो गुड्स जिनकी हमें इंडिया में शॉर्टेज है वो हमें वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं, और हम बदले में यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो जिनकी आप देखो उन कंट्रीज में शॉर्टेज होती है। तो आप देखो इसकी वजह से आप देखो ट्रेड पैदा हुआ। तो इसलिए आप देखो अगर कोई कंट्री ट्रेड ना करे, इंटरनेशनल ट्रेड, वो सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि एक कंट्री में आप देखो सारे रिसोर्सेज जितनी भी उनको सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेज चाहिए वो सारी रिसोर्सेज कंट्री में प्रोड्यूस नहीं होंगे। कुछ रिसोर्स उनको एबंडेंस में होंगे, कुछ उनको शॉर्टेज होगी जो वो दूसरी कंट्री से उस शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए अपनी नेबरिंग कंट्री से फुलफिल करेगा। तो सेम केस विद इंडिया। इंडिया में आप देखो बहुत सारी रिसोर्सेज जिनकी नॉन अवेलेबिलिटी है, बहुत सारी गुड रिसोर्सेज एनफ क्वांटिटी में पाए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे रिसोर्सेज जिनकी नॉन अवेलेबिलिटी होती है जो अदर कंट्रीज में एबंडेंस में पाए जाते हैं। तो उन्हीं में आप देखो हम वो रिसोर्सेज बाकी कंट्री से ले रहे हैं, वहां बाकी कंट्री से इंपोर्ट करा रहे हैं। जैसे ऑयल वगैरह की हमें जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हमारी कंट्री में जनरली आप देखो ऑयल की आप देखो प्रोडक्शन उतनी और नहीं हो रही है। तो अगर हम वहां पे ट्रेड नहीं करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं, हम सर्वाइव नहीं कर पाते। हम इस मॉडर्न एरा में आप देखो सर्वाइव नहीं कर। तो आप देखो जो ये ब्लैक गोल्ड होता है, जो आप देखो हमारे एक इंपॉर्टेंट एनर्जी ऑफ रिसोर्स है, एक एनर्जी क्राइसिस हमारी कंट्री में है। अब ये हमारी कंट्री को आप देखो चला रहा है ये पेट्रोल। सो इसकी वजह से आप देखो हमारी कंट्री सर्वाइव नहीं कर पाई। इसी तरफ दूसरी कंट्री में आप देखो दिस फूड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की कमी होगी, वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो हम यहां बदले में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स उनको वापस भेज रहे हैं। तो आप देखो ये बाइंग एंड सेलिंग हो गई, तो जिसकी वजह से ट्रेड होगा। और अगर कोई कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड ना करे वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। क्यों सर्वाइव नहीं कर पाएगी? क्योंकि एक कंट्री में आप देखो अपने जितने लिए अपने सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेज वो सारे प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। वहां कुछ प्रोड्यूस होते हैं, कुछ नहीं होते, और वो अपनी उन शॉर्ट रिसोर्सेज को जो उनको नीड फैलते हो रही है वो उनको नेबरिंग कंट्री से फ्लो कर रही है। तो जिसकी वजह से आप देखो ट्रेड पैदा हुआ। सो वही मैंने यहां पे लिखा, नो कंट्री कैन सर्वाइव विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड। कोई भी कंट्री आप देखो सर्वाइवल नहीं कर सकते, क्योंकि नेचर हैज बाउंड द रिसोर्सेज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड। आप देखो जो हम ट्रेड करें इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। कभी आप देखो इंटरनेशनल ट्रेड में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कभी इंपोर्ट कर रहे हैं। चाहे हम एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट का बेटा मतलब है कि जब हम कोई कंट्री उसको एबंडेंट कुछ रिसोर्सेज होंगे और वो सरप्लस रिसोर्सेज दूसरी कंट्री को भेजेगी, तो उसको बोलते हैं हम एक्सपोर्ट करना। एक्सपोर्ट मीन्स अगर हम कुछ रिसोर्सेज, कुछ प्रोडक्ट्स को अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में भेज देंगे, दूसरी कंट्री को सप्लाई करेंगे, दैट सप्लाइंग ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर कंट्रीज, दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट प्रोसेस। लेकिन आप देखो इफ देयर इज द शॉर्टेज ऑफ सम रिसोर्सेज इन आवर कंट्री, सो अगर हम किसी दूसरी कंट्री से वो चीजें मंगाएंगे जिनकी कमी हमारी कंट्री में होगी, तो उसको बोला जाता है इंपोर्ट। उसको क्या बोला जाता है? इंपोर्ट। जब हम बैरोनी कंट्री से, बाकी अदर फॉरेन कंट्री से वो चीजें मंगाएंगे जिनकी हमें जरूरत होगी, जिनकी हमें नीड फैल्ड होगी यहाँ पे, जिनकी हमें यहाँ कमी होती है, तो वहां से जो हमने गुड्स को बाई किया है दैट इज नोन एज इंपोर्ट। इसको बोला जाता है ट्रेड में। लेकिन जब हम कुछ गुड्स यहां से उन कंट्रीज को सप्लाई करेंगे जिनकी हमें यहाँ पे ज्यादा तादाद में प्रोडक्शन होती है, तो उसको बोला जाता है एक्सपोर्ट। यानी ये दो कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन जो कंट्री एक्सपोर्ट करेगी, जैसे हम यहां से कुछ प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल हम चाइना को कुछ प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करेंगे इंडिया से, तो आप देखो हमने एक्सपोर्ट किया, लेकिन इंडिया चाइना का ये बन गया इंपोर्टेड। चाइना का बन गया इंपोर्टेड क्योंकि उसने मंगाया है। लेकिन अगर चाइना हमें कोई चीज वहां से भेज देगा, तो हमने वहां पे वो बोलेगा मैंने एक्सपोर्ट किया, लेकिन हमें ये तो इंपोर्ट है, ये हमारी कंट्री में आ चुका है। मतलब इंडिया की एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, इंडिया में आप देखो किसी चीज की कमी है जो हमें यहाँ पैदा नहीं होती है, जिनकी हमें शॉर्टेज है, तो हम बाकी कंट्री से मंगाएंगे, तो हम उसको बोलेंगे हमने इंपोर्ट किया। किस कंट्री से मंगाएंगे? इंपोर्ट हमने चाइना से किया, इंपोर्ट हमने यूएसए से किया, इंपोर्ट हमने रशिया से किया। तो उन चीजों को मंगाना दैट इज द इंपोर्ट टू द कंट्री इंडिया। लेकिन उन्होंने एक्सपोर्ट किया इंडिया को, हमने इंपोर्ट किया क्योंकि हमारी कंट्री में आ चुका। लेकिन अगर हम कंट्री इंडिया से आप देखो, अब हम एग्जांपल इंडिया की ले रहे हैं, इंडिया से हम देखेंगे वो बहुत सारी चीजें जैसे केमिकल्स या आप देखो आयरन ओर को हम यहां से दूसरी कंट्री को बेचेंगे, या कॉटन, रॉ कॉटन हम दूसरी कंट्री को बेचेंगे, तो ये हमारी कंट्री में प्रोड्यूस
प्रोड्यूस हो रहा है, हम इसको जापान को भेजेंगे या बाकी अदर कंट्री को, तो आप देखो हमने यहाँ से भेज दिया, दैट इज नोन एज द एक्सपोर्ट, दैट इज नोन एज द एक्सपोर्ट। जब हम कंट्री से बाहर भेजेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारी कंट्री में कॉटन है तो हम उसको जापान को भेजेंगे तो हम एक्सपोर्ट बोलेंगे, लेकिन अगर हम जापान से कोई चीज मंगाएंगे अपनी कंट्री के लिए तो इंपोर्ट बोलेंगे। तो यही दो चीजें हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जब हम खरीदेंगे किसी कंट्री से दैट इज नोन एज द इंपोर्ट, जब हम बेचेंगे किसी को कंट्री को दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट। बाइंग एंड सेलिंग, जब हम सेल करेंगे, यहां से बीच में सेल कर रहा हूं तो आप देखो सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज नोन एज एक